Chapter number 13, Fun with Magnets. Paheli and Buzo went to place wherever a lot of waste material was piled into huge heaps. Something exciting was happening. A crane was moving toward the heaps of junk. The long hand of crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. पहले एंड बुजो एक ऐसे प्लेस पे गए जहाँ पे कबाड़ के बड़े बड़े से ढेर थे और वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होता है। कूड़े की ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी और क्रेन ने इस ढेर की ओर एक ब्लॉक को नीचे किया और बाद में वो ब्लॉक ऊपर उठने लगा। गैस क्या हुआ होगा? बेकार पुराने आयन के जो टुकड़े थे वो क्रेन के साथ ऊपर जाने लगे उसके साथ चिपक कर। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junk yard. उन्होंने थोड़ी टाइम पहले ही एक अच्छी वाली मैग्नेट की बुक पढ़ी थी और उन्होंने तुरंत ही सोच लिया कि क्रेन के साथ अवश्य ही एक चुंबक का मैग्नेट का टुकड़ा जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए ये आयन के टुकड़े हैं वो उसके साथ चिपक रहे थे। You might have seen magnet and have even enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surface like almirahs or the doors of refrigerators? In some pin holders, the pin seems to be sticking to the holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it even without a looking arrangement. Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside. Figure 13.2. If you have any one of these items, try to locate the magnet hidden in this. आप में से कई लोगों ने मैग्नेट्स देखे होंगे और उसके साथ आपको खेलने में भी मज़ा आया होगा। आपने ऐसे स्टिकर्स पे देखे होंगे जैसे लोहे की सरफेस पे, जैसे अलमारी या फिर रेफ्रिजरेटर के दरवाजों के साथ चिपक जाते हैं। कुछ होल्डरों में पिन होल्डर के साथ चिपके हुए आपने देखे होंगे। कुछ पेंसिल बॉक्स में भी आपने देखा होगा कि ताले के बिना भी वो कैसे एकदम सही से चिपक के बंद हो जाता है। ऐसे स्टिकर्स, पिन होल्डर और पेंसिल बॉक्स में इसी तरह मैग्नेट लगा हुआ रहता है। अगर आपके पास इस 13.2 में दी गई कोई भी चीज़ है तो आप तुरंत ही उसे ढूंढने का ट्राई कीजिए कि कहाँ पे ये मैग्नेट लगा हुआ है। How magnets were discovered. It is said that there was a shepherd named Magnus who lived in ancient Greece. He used to take his herd to sheep and goats to the nearby mountains for grazing. He would take a stick with him to control his herd. The stick had a small pieces of iron attached at one end. And one day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on mountainsides. It seemed as if the stick was being attracted by the rock. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. It is said that this is how natural magnets were discovered. Such rocks were given the name magnets. Perhaps after the name of that shepherd's magnet it contained iron. Some people believe that magnetism was first discovered at a place called Magnesia. The substances having the property of attracting iron are now known as magnets. This is how the story goes.
कहते हैं कि प्राचीन टाइम में एक शेपर्ड रहता था, उसका नाम मैग्नस था। वह रोज अपनी भेड़ और बकरियों को झुंड को उसके पास के पहाड़ों पे चराने के लिए ले जाता था और भेड़ों पर नियंत्रण रहे उसके लिए वो अपने पास एक छड़ी भी रखता था और उसके छड़ी के एक एंड पर लोहे की कैप लगी हुई थी। एक दिन उसको पहाड़ के चट्टान पे से इसी छड़ी को उठाने में बहुत जोर देना पड़ा। वो आश्चर्यचकित हो गया और उसको लगा कि पहाड़ उस छड़ी को उसके तरफ आकर्षित कर रही है। वो रॉक एक नेचुरल मैग्नेट था और उसने उस शेपर्ड के छड़ी की लो की टोपी को आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस तरह नेचुरल मैग्नेट की खोज हुई। ये भी हो सकता है कि इस शेपर्ड के नाम से ही उसका नाम मैग्नेट रखा गया और उस पत्थर का मैग्नेटाइट नाम रखा। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मैग्नीशिया में पहले पाया गया हुआ था। जिन पदार्थ में लोहे को आकर्षित करने की शक्ति होती है उसे हम मैग्नेट कहते हैं। In any case, people now have discovered that certain rock have the property of attracting pieces of iron. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. They named these naturally occurring material magnets. Later on, the process of making magnets from pieces of iron was discovered. There are no artificial magnets. Nowadays, artificial magnets are prepared in different shapes. For example, bar magnet, horseshoe magnet, cylinder or a ball-ended magnet. Figure 13.4 show a few such magnets. लोग अब जान चुके थे कि रॉक्स में लोहे को आकर्षित करने का एक गुण है। उन्होंने ये भी पाया कि इस रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ ऐसा पदार्थ है, कुछ विशेष गुण हैं। नेचुरली ऐसे पदार्थ को मिलने से उनका नाम मैग्नेट्स दिया गया। उसके बाद लोहे के टुकड़ों से कई तरह के चुंबक बनते हैं, मैग्नेट्स बनते हैं और वो कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहलाते हैं। आजकल ऐसे कई तरह के डिफरेंट शेप में मैग्नेट बनाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 13.4 में देख सकते हैं। Activity number 1. Take a plastic or paper cup. Fix it on stand with the help of clamp as shown figure number 13.5. Place a magnet inside the cup and cover it with paper so that the magnet is not visible. Attach a thread to clip made of iron. Fix the other end of the thread at the base of the stand. Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without support, like a kite. आप एक प्लास्टिक या फिर पेपर कप लीजिए और इस फिगर में दिखाया गया है इस तरह से उसके क्लैंप से फिट करिए और इस कप के अंदर एक चुंबक रखिए मीन्स मैग्नेट रखिए और इसे पूरी तरह से ढक लीजिए कि वो दिखाई न पड़े। लोहे के बने क्लिप को एक धागे से बांध लीजिए। धागे के दूसरे एंड को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। पर यहाँ पे ध्यान देना है कि धागे की लंबाई को हमको छोटी रखनी है। क्लिप को प्याले के आधार के नज़दीक लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की तरह उस हवा में रुका होता हुआ है। It's easy, like figure 13.5. 13.1 Magnetic and non-magnetic materials. Activity number 2. Let us walk in the footsteps of magnet. Only this time we will change the position of the magnet and the iron. There will be magnet at the end of our shepherd's stick. We can attach a small magnet to a hockey stick.
walking stick or cricket wicket with a tape or some glue. Let us now go out on a Megan's walk through the school playground. What does our magnet stick pick up from the school ground? What about objects in the classroom? आइए हम मैग्नेट्स की तरह भ्रमण करते हैं और इस बार हम मैग्नेट और आयन की पोजीशन चेंज कर देंगे। अब शेपर्ड की एक छड़ी की और एक मैग्नेट होगा। हम किसी हॉकी स्टिक को, वॉकिंग स्टिक और क्रिकेट विकेट को हम एक टैप या ग्लू की मदद से उस चुंबक को चिपका सकते हैं। आइए अब हम स्कूल के प्लेग्राउंड में मैगन्स की स्टिक को लेके चलते हैं। अब आप पता करिए कि कौन कौन सी चीज़ है जो ऊपर उठती है। Collect various objects of day-to-day use from your surroundings. Test this with the magnet stick. You can also take a magnet. Touch this object with it and observe which objects stick to the magnets. Prepare a table in your notebook as show figure 13.1 and record your observation. अब आप आस पड़ोस की जो आप डेली यूज़ करते हैं उस तरह की चीज़ों को लीजिए और आप इस एक्टिविटी में मैग्नेट भी ले सकते हो और शेपर्ड की छड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और आप देखिए कि कौन कौन सी वो चीज़ है जो इसके सिरे पे उचकती है, मतलब कि वो ऊपर आती है। टेबल नंबर 13.1 फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। यहाँ पे हमको कॉलम दिए गए हुए 3, उसमें फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, सेकंड कॉलम है मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, क्लोथ्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, वुड, ग्लास एंड आयरन एंड एनी अदर्स। थर्ड कॉलम है अट्रैक्ट बाय मैग्नेट्स, स्टिक, मैग्नेट्स, यस और नो। ओके, तो फर्स्ट कॉलम ऑब्जेक्ट है आयरन बॉल, वो किस चीज़ का बना होता है? ऑफ कोर्स आयरन। देन अट्रैक्ट होगा, यस ऑफ कोर्स। देन स्केल, स्केल प्लास्टिक की होती है, सो अट्रैक्ट नहीं होगी, मीन्स नो। शूज़ वो लेदर के होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होंगे। आयरन नेल आयरन के बने होते हैं, ऑफ कोर्स वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट से। देन थ्रेड, थ्रेड कॉटन का होता है, वो अट्रैक्ट मैग्नेट से नहीं होगा। ओके, इट्स इजी। फिर इसके बाद कंक्लूजन क्या निकलता है कि सम ऑब्जेक्ट्स गेट अट्रैक्ट टू द मैग्नेट एंड सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट। इट्स इजी। Look at the last column of 13.1 and note the objects that are attracted by magnet. Now make a list of materials from which these objects are made. Is there any material common in all objects that were attracted by the magnets? अब आप लास्ट कॉलम में देख सकते हैं कि जो चीज़ में यस आया हुआ है जो अट्रैक्ट करती है मैग्नेट्स को, उसका आप लिस्ट बनाइए और आप ढूंढिए कि वो चीज़ कौन से पदार्थ की बनी हुई है। ओके, वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट्स अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल वेयर सम डू नॉट गेट अट्रैक्ट टूवर्ड मैग्नेट्स। The material which get attract toward the magnet are magnetic. For example, iron, nickel or cobalt. The material which are not attract toward a magnet are non-magnetic. What material did you find to be non-magnetic? From 13.1 is soil a magnetic or non-magnetic material? कुछ पदार्थ है जो चुंबक मैग्नेट को आकर्षित करते हैं और कुछ पदार्थ है जो आकर्षित नहीं करते हैं। जो पदार्थ चुंबक को मैग्नेट को आकर्षित करते हैं उसे हम मैग्नेटिक कहते हैं, जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट। और जो पदार्थ मैग्नेट को आकर्षित नहीं करते उसे हम नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। ओके, अब आपको ढूंढना है कि जो मिट्टी है, सॉइल है, वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, देन बुजो हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू। A tailor was sticking buttons on his shirt. The needle has slipped from his hand onto the floor. Can you help the tailor to find the needles? अब बुजो के मन में एक क्वेश्चन है कि अगर टेलर है वो स्टिकिंग बटन को कर रहा है और उस टाइम उस निडल उसकी नीचे गिर जाती है, तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं? किस तरह से आप उसको हेल्प कर सकते हैं? एकदम इजी है कि मैग्नेट्स की मदद से हम इस टेलर को मदद कर सकते हैं। ओके,
Activity number 3. Rub a magnet in the sand or soil. Pull out the magnet. Are there some particles of sand or soil sticking to the magnets? Now, gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. Are some particles still sticking to it? This might be small pieces of iron fillings picked up from the soil. अब आप मैग्नेट को सैंड और सॉइल में रगड़े। अब आप देखिए कि कुछ पीसीस है वो अभी भी उस मैग्नेट पर स्टिक है। ओके, अब आप धीरे से उस मैग्नेट को हिलाइए। अब आप देख सकते हैं कि कुछ अभी भी जो पीसीस है वो उस मैग्नेट के साथ चिपके हुए हो। ये आयरन के टुकड़े हो सकते हैं। ओके, through such an activity we can find out whatever their soil or sand from a given place contains particles that have iron. Try this activity near your home, school, or the places you visit on your holidays. Does the magnet with iron filling sticking to it look like any one of these? Show figure number 13.6. Make a table what you find. Okay. अब आप इस एक्टिविटी को आप घर पे, स्कूल में या फिर आप कहाँ पे हॉलीडे पे जाते हो तब इजीली ये कर सकते हो। ओके, और आप एक टेबल बनाइए कि कौन कौन सी वो चीज़ है जो आपको फाइंड होती है। ओके, यहाँ पे फिगर 13.6 में दिखाया गया है कि मैग्नेट विथ ए फिगर है वो मैनी आयंस फिलिंग्स, बी फिगर फ्यू आयंस फिलिंग्स एंड सी नो आयन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट। और आप इस टेबल को इजीली फिलअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।